السلام علیکم ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے کچھ سوال میرے پاس آئے تھے. کالر نے مجھے کال کر کے جو سوال پوچھا تھا, انشاءاللہ چلے ہم اس سوالوں پہ چلتے ہیں. پہلا جو کال تھا, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ پاؤں کے ناخن ان کے خراب ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے میں ان کو نسخہ دوں. اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی ماشاءاللہ پریگننٹ ہے اور یہ ان کا لاسٹ ویک ہے, تو یہ کیا کھا سکتے ہیں. تو پہلے میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتی ہوں. کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت, جو حاملہ خواتینیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ جو ان کا آخری جو نزدیک, جب ان کے وقت نزدیک آ جاتے ہیں ڈیلیوری کے, تو ان کو بہت کچھ کھانے کا دل کرتا ہے. تو ہم شروعات میں کھانے پینے کی جو پرہیزی کرتے ہیں وہ شروعات میں کرتے ہیں, لیکن ابھی ان کا جو بھی کھانے کا دل ہے, وہ جو بھی مانگتی ہے, انشاءاللہ وہ ان کو ضرور کھلائیں, کیونکہ وہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ایک جب یہ ماں کا دل ہوتا ہے کہ ان کو کچھ کھانا ہے, تو ان کے دل میں ایسے ہوتی, ان کو کریونگ ہوتی ہے, تو ان کو کھلائیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو روزانہ رات کو دودھ, اگر گرم دودھ کے ساتھ مکھن کا استعمال کریں, جیسے آپ نے ایک گلاس دودھ لے کے ایک چمچ بھر کے اگر آپ مکھن کا استعمال کریں, آپ مکھن کا کریں یا تو پھر آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی آسانی ان کے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے, اور جو ان کی جو ڈیلیوری ہے اس میں انشاءاللہ بہت ان کو آسانی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ان کو طاقت کی ضرورت ہوگی. کیونکہ حاملہ جو خواتین ہیں ان کو جو ان کا جب ان کا وقت نزدیک آتا ہے ڈیلیوری کا, تو ان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو روزانہ ان کو دودھ پلائیں, اور دودھ کے اندر جو بھی ان کو پسند ہے, مکھن یا پھر دیسی گھی کا ایک چمچ گرم دودھ میں ڈالیں اور ان کو روزانہ پلائیں. وہ منع بھی کرے تو ان سے کہنا کہ یہ پیے, یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اور یہ ان کو بہت آسانی انشاءاللہ دے گا, اور ان کے لیے بہت یہ طاقت کا باعث بنے گا. تو یہ روزانہ ان کو دیں. کھانے پانے کی چیزیں جو بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں, ان چیزوں کا استعمال آپ ان کے لیے بے شک کریں. کھجوریں آپ روزانہ ان کو 2 کھجوریں دے دیں کھانے کے لیے. جو خون کی کمیاں ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد, بچہ ہونے کے بعد جو زچہ کو جو خون کی کمی ہوتی ہے, اس خون کی کمی سے ان کو بچا سکتا ہے. تو روزانہ 2 کھجوریں یا 3 کھجوریں صبح اٹھ کر اگر وہ کھائے, تو یہ بھی ان کے لیے بہت مفید ہوگا. اس کا استعمال آپ کھجوریں روز کھائیں. اس کے علاوہ آپ اگر کھجور کا جوس اگر آپ بنا کے دے دیں, نبیز بنا کے دے, تو یہ بھی ان کے لیے بہت مفید ہوگا. کیونکہ زچہ کو جو ہوتا ہے بعد میں ہمیں کیا پریشانی ہوتی ہے کہ خون کا ضائع ہونا ان کو تکلیف دیتا ہے, اور جو ان کی طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو آخری جو ان کا وقت ہوتا ہے, ان کا نزدیک آنے والا جو وقت 2 سے 3 ہفتہ جو ان کا ہوتا ہے, ان میں ان کو وہ ہر چیز پلائے جو ان کو طاقت دے گی اس وقت کے لیے جب ان کو ضرورت ہوگی. تو یہ ان کے لیے بہت. اور جو بھی فروٹس ہے آپ کھا سکتے ہو, کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے. وزن بڑھنے کا بالکل بھی انہیں کہے پریشان نہ ہو, وزن بڑھے گا بعد میں انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ وقت ہے کہ آپ جتنی بھی طاقت آپ بٹور سکتے ہو, اور جتنی بھی طاقت آپ حاصل کر سکتے ہو غذا کے ذریعے, تو وہ آپ حاصل کر لیں جو آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کے اس وقت پہ. تو انشاءاللہ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. اور پاؤں کے ناخن خراب ہو رہے ہیں. پاؤں کے ناخن خراب ہونے کی وجوہات بہت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم پیر صاف نہیں کرتے, کبھی ہم گیلے پیروں پہ ساکس پہن لیتے ہیں. کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ہمارے جسم میں جو کریکنیس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کوئی چپل اگر ہم غلط پہن لیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو پیر ہے کچھ وقت کے لیے اگر آپ اپنے پیروں کو نمک کے پانی میں اگر بھگا کے رکھیں تھوڑا وقت کے لیے, 10 سے 15 منٹ, جیسے نیم گرم پانی میں نمک ڈالیں اس میں, اور تھوڑا سا کوئی بھی جو بھی آپ کو تیل پسند, جو آپ کے اسکن کو جو سوٹ ہوتا ہے وہ تیل اگر آپ گرم پانی میں, نیم گرم پانی میں ڈال کے اپنا پیر اس میں 10 سے 15 منٹ ڈبو کے رکھیں, اور اس کے بعد اپنے پیروں کو صاف کریں, اپنے ناخنوں کے جو بھی اس میں کالا پن آپ کہہ رہے ہو, انشاءاللہ وہ اس کو آپ کو صاف کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد آپ اس کو دہی کے اندر شہد, اس کو مکس کر کے اس کو اپنے پیروں پہ اس کو لگا لے, اور 10 منٹ. ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی مجھے ہے نا ارتھرائٹس ہے گھٹنوں میں. اچھا. اور میرا رائٹ ہینڈ سائڈ کا گھٹنا اور سائڈ سے ہے نا سوجن ہو گئی ہے بہت. رائٹ لیگ میں آپ کو سوجن ہو گئی ہے. یہ نی میں.
नी के साइड पर सूजन हो गई है सूजन हो गई जी, और मुझे आर्थराइटिस की वजह से ना घुटनों में दर्द है। ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, सलाम। आमीन, वालेकुम अस्सलाम। तो पैरों को आपने लगाना है क्रीम, दही और उसमें शहद डाल के इसका अच्छा, सिर्फ अगर आप शहद का भी इस्तेमाल करोगे ना अपने नाखूनों पे, जैसे आपने आपका पैर धो लिया, उसको सोख करके रखा, फिर आपने पैर को साफ़ कर दिया, आप ब्रश के इस्तेमाल से भी आपका पैर अगर नमक के पानी में साफ़ करो तो काफ़ी हद तक मदद मिलती है। और ये चीज़ आपके लिए होती है। नमक, ऑयल दोनों चीज़ डालें। अगर आपने तेल नहीं डाला तो भी कोई परेशानी नहीं है। फिर अगर आप दही और शहद भी लगा सकते हो या सिर्फ शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप रोज़ाना शहद अपने नाखूनों पे लगा ले और हल्का सा जब वो ड्राई हो जाए तो उसको सिर्फ आपको साफ़ करना है इंशाल्लाह। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पानी बहुत पीजिए। अभी सर्दी में पानी हम बहुत कम पीते, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप दूध नहीं पीते हो तो हफ्ते में 1-2 बार दूध का भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए। दूसरा हमारा कॉल था जो 55 साल की, इन्होंने कहा इनके कानों में आवाज़ आती है और इन्होंने दूसरा सवाल ये किया था कि उनकी बेटी को हमेशा बलगम होता है और इनको खांसी भी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है, बट खांसी भी है। तो पहले मैं ये 2 सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, कानों में आवाज़ आती है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्ख़ा ये है कि जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल में आपको लहसुन की कलियाँ डाल के गरम करना है। अभी आप कितनी भी क्वांटिटी, आप कितना इस्तेमाल उसका करोगे वो हिसाब से आप तेल, और जैसे आपने अगर आधा कप तेल लिया है सरसों का तो आप उसमें 3 कलियाँ डालें, उसको ऐसे कुचल के डालें लहसुन को और उसको गरम करें। फिर उसको ठंडा करके जिस कान में आपको दर्द है उस कान में आप 2 ड्रॉप सुबह और शाम डाला कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा जो आपकी आवाज़ आती है वो। और उसके अलावा सरसों के तेल का इस्तेमाल अगर आप अपनी नाक में भी 1-2 ड्रॉप डाल दें बिना लहसुन वाला, तो इससे भी आपकी जो साँय की आवाज़ है इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। अच्छा, इन्होंने जो बेटी का कहा है जो 32 जिनको बलगम और खांसी बहुत ज़्यादा है, तो खांसी के लिए आपने कहा इतनी ज़्यादा खांसियाँ नहीं है, लेकिन बलगम के लिए मूली का जो रस होता है, सफ़ेद मूली होती है, उसके पत्तों का रस ये बहुत मुफीद होता है बलगम वालों को। और मूली भी खाना इनके लिए बहुत मुफीद है, तो ये एज़ अ सलाद भी खा सकते हैं या आप मूली का भी जूस पी सकते हैं बना के, लेकिन फ्रेश घर का बना हुआ, और मूली के पत्तों का भी आप दोनों मिक्स करके पी सकते हो। ये आपके बलगम को बहुत आसानी से जिस्म से निकालेगा। और बलगम की प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो जितना हम उसको बाहर निकालेंगे उतना हमको बहुत एक हद तक तकलीफ़ होगी। अच्छा, इसके अलावा सरसों के तेल में जो मैंने लहसुन वाला कान के लिए जो मैंने कहा है, वही तेल, सेम तेल अगर आप रोज़ाना उनके चेस्ट पे लगा दें, सीने पे लगाएं, तो ये भी उनके बलगम में बहुत आसानी करेगी। तो ये 2 नुस्खे हैं जिसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खांसी है तो आप उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अदरक का जूस बना के आप पीजिए। जूस नहीं, अदरक का पानी आप निकाल के इंशाल्लाह पिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा आपकी खांसी के लिए। नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसे सीलियाक डिजीज़ है जिसमें जैसे वो आटे की कोई चीज़ नहीं खा सकती, तो अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि उसका कोई इलाज है? जैसे आटे की चीज़ कोई भी नहीं खा सकती, कोई भी आटा नहीं खा सकती वो, नहीं, सिर्फ जैसे वीट नहीं खा सकती, खाली व्हीट नहीं खा सकती वो। ये ग्लूटेन फ्री चीज़ें उसे खानी अच्छा, पड़ती। जो ग्लूटेन फ्री जो खाते हैं। जी, उसका कोई इलाज है कि जैसे नहीं? हाँ हाँ, इंशाल्लाह अगर आप इसका इलाज चाहते तो आप ज़मज़म के पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और इसके साथ कलौंजी का अगर तेल का आप इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। मैं इंशाल्लाह और तफसीर से इसको बताती हूँ, ठीक है? फायदे से मतलब जैसे वो खत्म हो सकती है बीमारी के नहीं? हाँ, देखिए, बीमारी तो इंशाल्लाह कोई भी बीमारी हो वो ख़त्म हो सकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज उतारा है। तो इंशाल्लाह बस आपको भरोसा रखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह शिफा देगा। बस वही हमारी सोच होनी चाहिए, इंशाल्लाह। ठीक है? तो आप बताएंगी तफसील से जी थोड़ा? जी, मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। ओके। तो बलगम के लिए जो मैं बता रही थी, और खांसी के लिए अदरक का जो जूस है, खाली अदरक को ग्रेट करके आप सिर्फ उसका जूस निकाल के 1 चम्मच आप पी लें।
दिन में 2 बार पिए, 3 बार, कोई नुकसान नहीं है। और ये आपके खांसी के लिए भी और प्लस आपके बलगम के लिए भी बहुत। तो 2 से 3 जो नुस्खे मैंने बताए हैं वो हर किसी के लिए, जिनको भी शिकायत है उनके लिए एक है। अच्छा, इन्होंने अपने बेटे का भी सवाल किया था जिनको हे फीवर अक्सर होता है। हे फीवर यहाँ पे एक मैं बोलूँगी जैसे कॉमन बीमारी नहीं बोलूँगी, छोटी बड़ी चीज़ें, बीमारी का अल्फाज इस्तेमाल करना सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये एक जो मौसम की वजह से, जो वेदर की वजह से, या फ्लोतीन जो यहाँ पे इतने हरे भरी बागात हैं यहाँ पे, तो उस वजह से ये चीज़ें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बोलिए। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका भी कोई है देसी नुस्खा कि बिना ऑपरेशन के निकल जाए? डॉक्टर ने आपसे कहा है कि वो ऑपरेशन करना, सर्जरी करनी होगी? नहीं, ये इसको 3-4 साल हो गए तो इतना दर्द वगैरह नहीं होता। कहते हैं अगर दर्द नहीं है तो मत निकलवाओ, लेकिन कभी कभी दर्द होता है। अच्छा अच्छा, नहीं इंशाल्लाह हो सकता है। अगर आप घर के नुस्खों से भी स्टोन का इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो 9 mm का है जी। तो डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि ज़रूरी है कि सर्जरी या नहीं ज़रूरी है, वो भी वो लोग नहीं, बताते उन्होंने दोनों चीजें कह दी है ना कि अगर नुकसान दर्द नहीं है। हो रहा जी जी तो जी, मत करवाइए। तो मैंने इंशाल्लाह आपको, इसका मतलब आपका हो सकता है ये। अगर कल को ज्यादा बढ़ जाए तो उससे पहले अगर निकल सके तो किसी तरीके से। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। चले मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। ओके, तो हे फीवर के लिए हे फीवर की जिस किसी को भी शिकायत है, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो जो नाक के जो हम बाल ट्रिम करते हैं उसको बंद कर दे आप, सबसे पहली बात। क्योंकि अल्लाह ने एक मकसद से हमको ये नाकों में जो है वो बाल दिए होते हैं, और ये बहुत सी बीमारी जो हमारे नाक के ज़रिए जो जाती है वो उसको रोकता है। तो ये चीज़ अगर आप करते तो उसको बंद कर दे, सबसे पहली बात। और इसके लिए एक मैं कहवा आपको बताती हूँ, जो कावा होता है वो आप इसका इस्तेमाल करें, जिसमें आपने हरी इलायची डालना है, कलौंजी डालना है। जितना भी आपको कप बनाना है, कप का मेजर मैं नहीं बता सकती कि आप किसी ने 1 कप बनाना है, 2 कप बनाना है, लेकिन जो क्वांटिटी होगी 1 कप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। 1 कप में आपको 2 हरी इलायची वो कूट के डालनी है, और कलौंजी का पानी, जो कलौंजी हाफ़ टी स्पून आपको डालना है। उसको पानी अच्छा बॉईल करना है। जब वो 1 कप से हाफ़ कप हो जाएगी तो वो हाफ़ कप आपको पीना है। आप अभी सर्दी का मौसम है तो आप ये रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कलौंजी की क्वांटिटी ना बढ़ाए, उसको कम से ही शुरू करें, क्योंकि वो थोड़ी गर्माश भी कर देती है मौसम की वजह से। तो इसका इस्तेमाल करें। और नाक में नमक के पानी से, जो नाक में है नमक के पानी से आप उसको धोया कीजिए हमेशा, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारा तीसरा जो सवाल था आर्थराइटिस के बारे में। इनके आर्थराइटिस है, इनके पैरों में बहुत, नी में भी इनको सूजन है, ये बता रहे थे। तो सूजन बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस है इनके लिए। तो इसके लिए कुछ देखिए, आर्थराइटिस मेरे ख्याल से हर प्रोग्राम में मैं अपने आर्थराइटिस के बारे में अपने जो नाजरीन हैं उनको बताती हूँ। तो अगर आपको आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा शिकायत अभी ठंडियों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप अजवाइन का पानी का इस्तेमाल कसरत से करें, रोज़ाना पिए। अजवाइन का पानी जैसे 1 गिलास अगर आप बना के रख रहे हो तो उसमें 1 टीस्पून आप अजवाइन डाल के उसको बॉईल करके हाफ़ कप करें, जैसे कावा जैसा बन जाएगा उसको, और उसका इस्तेमाल आप करें। रोज़ाना पीना है आपको। आप दिन में 1 ही दफ़ा पिए, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है इसके लिए, जब भी आपको लगे। लेकिन खाते वक्त खाने के बीच में ना खाए। आधे से 1 घंटा आप उसको वक्त दे के, नाश्ता खाने के आधे 1 घंटे बाद आप खाएं, या खाना आप खा रहे हो तो उसके 1 घंटे बाद आप इसको पिए। तो आप वक्त मुकर्रर करें, लेकिन उसके दौरान नहीं करें। उसको थोड़ा वक्त दे, खाने को हज़म होने दे 1 घंटा, उसको थोड़ा उसके बाद, लेकिन रोज़ाना पिए, रोज़ाना। और इसके अलावा सौंठ का पाउडर, जो सूखा हुआ अदरक होता है उसका पाउडर, और कलौंजी का पाउडर, और अजवाइन का पाउडर, ये आपको पाउडर जो है एक ही मिकदार में हो, एक ही क्वांटिटी में आपको लेना है। इसको पाउडर घर में बनाना है, बाज़ार का लाया हुआ पाउडर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घर में आपको बनाना है। और इसका जो इस्तेमाल है वो आपको करना है। अच्छा, इस पाउडर का इस्तेमाल शहद से आपको करना है, कि आपको शहद में जैसे आपने हाफ़ टी स्पून वो पाउडर ले लिया, तीनों मिक्स किया हुआ, और फिर उसमें आपने थोड़ा शहद डाला, उसको मिक्स करके उसको दवाई की तरह आपको पीना है। उसके ऊपर आपको नीम गर्म पानी पी लेना है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आसानी के लिए आप अपने पैरों में जो है
ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया कीजिए या कलौंजी के तेल का इस्तेमाल, दोनों मिक्स करके कीजिए। इससे भी आपके आर्थराइटिस के जो सूजन है इंशाल्लाह उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी ठंडी के मौसम में बहुत तकलीफ़ होती है, तो रोज़ाना करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको शुगर भी है किसी को और शहद नहीं, तो मैं आपको बता दूँ शुगर में जो डायबिटिक वाले हैं जिनको ज़ियाबतीस होती है, देखिए वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून, कोई नुकसान नहीं होगा। शहद, खजूर, किशमिश डायबिटीज़ वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। ये खाली हमें उसको यकीन करना है कि हम शक्कर नहीं खा रहे हैं और ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने इसमें मिठास दी है, तो इंशाल्लाह ताला इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो शहद का इस्तेमाल रोज़ाना भी आप 1 चम्मच अगर सिर्फ पी भी ले, वो भी आपके लिए बहुत मुफीद होगा। एक सवाल है जिन्होंने उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आटे की कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं। नाज़रीन एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, ठीक है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तो बोलें। बड़े अच्छे नुस्खे बताए आपने। तो जी बहुत बहुत ये जो शुक्रिया। आपने सुबह इसका बताए मूली शलजम, तो वो कितना उनको उबालें? बस मुझे सिर्फ उबालने का ये होता है कि बाद लोग कहते हैं कि बहुत ना बॉयल करो, जैसे आपने कहा सूप बनाओ, तो वो ज़रा आप बता दें कि कच्चा भी मैं खा सकती हूँ, लेकिन अगर बच्चों के लिए सूप बनाऊँ तो हाँ, कितना तो आप कितना उसको उनको? जब वो नरम हो जाए सॉफ्ट, जितना कि आप उसको ग्राइंड कर सके हैं, तो आप वो ग्राइंड हाँ। करके के लिए जितना आप सॉफ्ट खा सकते हो, क्योंकि ये सब्जियां कच्ची भी आपको फ़ायदा देगी और पकी हुई भी फ़ायदा देगी। बस नहीं जब तो फिर उबालने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बाद लोग नहीं, कहते हैं बस बॉयल फास्ट करो तो जो फास्ट प्रोटीन फ्लेम गायब हो है, जाती है। नहीं आप फास्ट में नहीं उसको बॉईल करें, उसको अब ठीक सीलो गैस पे बॉईल करें। और लाइट। जी शलजम जो ऐसा है कि मेरे ख्याल से वो उबलते हुए पानी में अगर आपने छोड़ दिया वो वैसे ही गल जाती है कुछ जी कुछ जी मिनट, जी तो उसमें कोई जी ज़्यादा जी। नुकसान नहीं होता है। तो दूसरा वो जो बीट, वो आपने उसका क्या कहा था, बीट रूट को क्या कहते हैं? जी चुकंदर। चुकंदर, चुकंदर फ्रेश लेके आए जो फ्रेश बाय से मैं मिलता है? हमेशा यही सबको कहती हूँ, जो भी बीमार हाल है अगर वो अपनी ज़िंदगी में फ़्रेश का इस्तेमाल करे, तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि जो हमने फ़्रेश चीज़ें खाना शुरू की तो हमारी बीमारियाँ अल्लाह ने कम कर दी है। नहीं, आप तो मेरी बेटी की जगह, लेकिन मैं फिर भी आपका एहतराम करती हूँ। आपने जो कुछ बताया मुझे यकीन करें कि वाकई मुझे, मैं सबको कहती हूँ कि मैंने आपकी जो चीज़ें इस्तेमाल की है ना, पहले मैं बिल्कुल डल थी, मैं कहती थी पता नहीं मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, मेरी ज़िंदगी कितनी है नहीं है। वो जो आपने नुस्खा एक बताया था बादाम अखरोट, जी वो जी जो बहुत सारी बहुत जो चीज़ें शुक्रिया। थी वो भी मैं लेती हूँ। फिर आप यही जो आपने बाकी और जो चीज़ें बताती हैं, तो उस पे मैंने लिख के रखा हुआ भी है, तो वो मैं उस पे करती हूँ। बहुत तो शुक्रिया, वो बहुत मुझे शुक्रिया। काफी फर्क पड़ा है। जो भी सुनने वाले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि करो, ये करो कि फिर बंदा, जैसे पहले मेरा कुछ ही काम को दिल नहीं करता था, मुझे उठान होती है कि मैं उठूं, मैं अल्लाह करूँ। का बहुत तो बड़ा आप भी एहसान है। मैं जी करती हूँ, तो दुआ देती हूँ आपको कि ये ऐसे प्रोग्राम हो। फिर पता है रिपीट होते हैं, हम लोग कितने जमाने से इस मुल्क में रह रहे हैं, तो वो बैक होम की चीजें तो भूल ही गई हमें। तो आपकी वजह से सारे लोगों को ये होता है ना जी कि बस इन्हीं हमारे चीजों में फंस प्रोग्राम की गए। कोशिश ही यही रहती है कि जो चीज़ हम भूल गए हैं, जो हमारे घरेलू जी नुस्खे, जो हमारे खाने की चीज़ें, बस मेरा काम है कि मैं हर हफ्ते आके वो आप लोगों को रिमाइंड कराऊं कि हमको ताज़ी चीज़ें खाना है, फ्रेश चीज़ें खाना है, बीमारियों से बचना है, बस और कुछ नहीं। बीमारियों से बचना है। जी तो एक और मेरा वो था क्वेश्चन था, बस वो देखो जी दिमाग इतना खराब है, ज़हन से ही निकल गया ना। जी बोलें। बस वो यही मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं पूछूं, क्या कहते हैं कि वाइल मैं तो कच्ची खा सकती हूँ बच्चों के लिए, आपने बताया। क्या मैंने कहा खाना है? बाकी हम लोग तो बस सिर्फ सूप चिकन और वो मीट ही, बस हम लोगों को तो पता ही नहीं है कुछ ना। अच्छा तो हम अच्छा। लोग बस यही चीजें बस देते हैं। तो नहीं, मैं फिर आपसे दोबारा फोन कर लूंगी, जो भी इंशाल्लाह होगा। कोई दुआ बात में नहीं भी है। याद रखें, आप जरूर भी आप बहुत दुआ ज़रूर करें। ज़रूर। देखें आप इतना नए काम भी करती हैं, अच्छी हैं, तो हम सबको अपने दुआओं में याद जी रखें। अल्लाह बहुत सब बहुत पे शुक्रिया, फजल करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। ठीक है। देखिए मेरी कोशिश, हमारी जो कोशिश यही रहती है कि जो मैं, इसलिए मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में मैं ये बात नहीं बोलना भूलती हूँ कि जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, या सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे मुल्क का ये हाल हो गया है, पूरी दुनिया का ये हाल हो गया है कि मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब करूँ कि हम डब्बे पे जी रहे हैं। कुछ भी पकाना हो हम लाते हैं, उसको पकाओ और हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो हमारी जो मुश्किल ही यही है कि हम जो बीमारी में, बच्चे बच्चे बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। चलो एक उम्र के बाद तो हम खुद सोचते हैं कि चलो एक उम्र हो जाती, 60 के बाद तो इंसानी जिस्म इतनी ताकत नहीं होती, हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन बच्चे बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे? क्योंकि हमने घर का खाना बंद कर दिया है, हम फास्ट फूड पे जी रहे हैं, हम काहिली और सुस्तखोर हो चुके हैं। हमें कुछ भी पकाना होता है हम डब्बा लाते हैं, खोलते। देखिए
میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ پوری طرح سے بند کریں، لیکن آپ سوچیں صحت ہے تو سب کچھ ہے. پیسے آ جاتے ہیں، ہم گھر سجا لیں گے، ہم پارٹیز کر لیں گے، لیکن اگر آپ خود اپنے مہمانوں کا استقبال نہیں کر سکتے ہو اپنی ہی دعوت میں، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ سب بیکار ہو جائے گی آپ کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں پہ شاید کوئی بھی خواتین مرد حضرات اس طرح کی باتیں آپ کو کریں، کیونکہ جو جنریشن اب چل رہی ہے ہم صرف پیزا برگر اور پیکٹ پہ چل رہے ہیں. چلے ناظرین، میرے شو کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ جن کے سوالات رہ گئے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.